to all the YouTube people who are watching this session, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का जो देश दुनिया से ये सेशन देखते हैं, रोज आते हैं और इसमें से एक अपना एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करते हैं। एंड साहिल भैया, आपको तो पता ही है, हम लोग ये सेशन जो कर रहे हैं उसका पर्पस ही है लोगों के चेहरे पे मुस्कान, लोगों का एक लाइफ सेलिब्रेशन मनाना। यहीं तक ही नहीं, एक ऐसा वॉलेंटियर तैयार करना जो एक सुपर हीरो की तरह हो, समाज में स्ट्रेस, वायलेंस, तनाव, दुखी जो भी कोई है, सबको वो अपलिफ्ट करे, इस ज्ञान मार्ग में लेके आए। ये सेशन भी भैया बहुत इनफॉर्मल होता है। एंड भैया, जो बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस यू टू द ग्रुप। सो साहिल भैया के बारे में बताऊं तो he's a graduate from IIT Kharagpur, founder and managing director of thepracticalJyotish.com. He has traveled across the world to conduct various astrology workshops and seminars. He is a certified counselor and a tarot master from IPHM, International Practitioners of Holistic Medicine, UK. He continues to help people and conduct astrology sessions even during the lockdown through online platform. He conducts various art of living programs such as breath and meditation workshop, corporate and youth programs, and wellness and de-addiction programs. And today he is here with us. And आज जो हमारा विषय है वो है simple ways to strengthen नवग्रहs. भैया, जो ग्रह होते हैं उसी से ज्यादातर लोग चिंतित रहते हैं कि हम अपने ग्रह को कैसे बैलेंस रखें या शांत रखें। तो भैया प्लीज इसके बारे में हमें एनलाइट कीजिए। ओवर टू यू भैया। Thank you, Abhishek. So yeah, so let us start with chanting Om 3 times. Let's close our eyes. Take a normal breath in and breathe out. Breathe in for Om. Slowly and Jai Gurudev. Jai Gurudev. So how are you all? कैसे हैं? बढ़िया भैया, आपकी आवाज चली कि आपने वो आपकी जब आपने मंत्र चैंटिंग किया था तब आपकी आवाज नहीं आ रही थी। Now it is fine? Yes. Yes, now it's fine. Okay. So let us start. So Aaj, you know what is today? Today is Thursday. So how many of you know who is the Lord of Thursday? Thursday का ruler कौन है? So Abhishek, what you can do, you can mute everyone and let everybody write in the chat box. Yes. So who is the ruler of Thursday? Abhishek, you can also answer. Guru. Brahaspati, yeah. Jupiter. Brahaspati. Yeah. So today's session title is easiest way, simplest way to strengthen our navgrahas. So let us start with Jupiter. What is Jupiter exactly? So Jupiter means all our masters, guru. जितने भी लोग हमारी लाइफ में कुछ तो भी हमें सिखाते हैं, it all is connected through guru. Okay, and
कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आपके मैनेजर भी है, सो दे आर आल्सो लाइक योर गुरु इन अ वे। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि मुंह पे तो सामने बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, एंड व्हेन दे start discussing with somebody else, so they start criticizing their managers or their superiors. So this is something you should never do if you want to strengthen your Jupiter. So basically now I'll tell what Jupiter means actually. Jupiter is more about your wisdom, and actually which is the most important thing. अगर आपकी बुद्धि सही नहीं है, आप कोई डिसीजन मेकिंग सही नहीं है, तो फिर आप कुछ भी करो, it might not be good. You know what you have to do, how you decide through your wisdom. So Jupiter is such a planet. If you can strengthen your Jupiter, so rest all planets will be automatically strengthened. And how to Jupiter planet? First remedy is जितने भी आपके सीनियर पीपल है, गुरुज है, सुपीरियर है, उनकी रिस्पेक्ट करें. ओके. एंड सेकंड इज गुरु पूजा चैंटिंग. गुरु पूजा चैंटिंग इज वेरी गुड for strengthening Jupiter. Third is Jupiter is connected with yellow color. So Thursday could, like I am wearing yellow kurta today. So it is quite good to wear yellow kurta. Okay. And one thing I should tell about all the planets, कि कोई भी planet अच्छा या बुरा नहीं होता. अगर कोई planet आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ ला रहा है, और एक्चुअली लाता भी है, किसी की कुंडली में सारे प्लैनेट स्ट्रॉन्ग नहीं होते, केवल गुरुदेव की कुंडली को छोड़ के आई हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ चार्ट अक्रॉस द वर्ल्ड. किसी भी एक इंसान की ऐसी कुंडली नहीं मिली जिसके सारे ही प्लैनेट अच्छे हो. एक ना एक प्लैनेट तो कुछ होता है कि हाँ थोड़ा इधर, किसी के में थोड़े ऐसे ज्यादा गड़बड़ होते हैं कुछ प्लैनेट्स, किसी के में थोड़े कम होते हैं. बट ऑल द प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट कितना भी खराब है, विद योर पुरुषार्थ यू कैन मेक इट स्ट्रॉन्ग. आई विल रिपीट इट. किसी की कुंडली में कोई भी प्लैनेट कितना भी खराब है, you can make it strong through your efforts. And this session will be all about that. What efforts you can do to make your planet stronger, and what all remedies I am telling you. Like बहुत सारी remedies होती है, यंत्र use करो, rings you पहनो. But actually the main thing what planets want you to be a better human being. और better human being आप कैसे बनते हैं? आपकी lifestyle में basic changes करके. So Jupiter is connected with your superiors. So Jupiter के लिए best remedy है lifestyle change की, be respectful to all your superiors and all the persons with whom you are learning something. Okay. Yeah, let me do it. Screen view. Yeah. Now second is Venus. Friday. Who is the ruler of Friday? Chalo, I have already told. Venus. So most of the people, I tell you, 90% of the people who comes to me, कुछ भी problem को लेके, they are facing some issue with the Venus. क्योंकि Venus is basically our desires. Like Venus is all the luxuries, all the happiness in our life. Like all the youths who are listening to this session, listen to me carefully. This is very interesting. So you know, everybody wants attractive personality, but attractive personality doesn't come from using cosmetics. मतलब थोड़ा बहुत help करता है. But it is the Venus energy which is actually attracts people. If you have a very high Venus energy, people will be automatically attracted to it. And how to make Venus stronger? So one of the best remedy is be very nice to females. If you are not good with females, then your Venus will go for a toss. Like Venus is basically a female planet, and it's like it takes care of the Devi energy, Shakti Tattva, Shiva and Shakti. Shakti Tattva comes from Venus. So be very, very good with females, and it is valid for both male and female. Like female भी female से काफी बार बहुत लड़ाई करती है, कुछ तो किसी के बारे में बुरा कहते हैं. So that also kind of destroys your Venus energy. No matter. So this is a very big secret. किसी की कुंडली में कोई भी planet कितना भी strong है, but if you are not acting nicely in that way, like किसी का Venus exalted भी है, but that person, that guy or girl is very bad, very rude to other fellow females, and mom and sister, your mother and sister, you should make your mother and sister happy. So if you are not good with them, then it won't work. And vice versa is also true. किसी का Venus बहुत weak भी है, but if they are very good with females, with their mother and sister, they are very happy with them. So the Venus will be very happy and they will get a lot of happiness. I tell you, मैरिड लाइफ, किसी की शादी नहीं हो रही. बहुत सारे कुंडलियां मेरे पास 50% कुंडलियां ऐसी आती है कि मेरी शादी नहीं हो रही.
both boys and girls. You know, main reason behind you are not able to get married, you don't have that attraction, you don't have that Venus energy. It's very deep, try to understand, it's very powerful. आजकल के youth generation के लिए Venus energy is very important to do good in your material life also, and somehow it helps you in spiritual life also. Like if you want to become a good art of living teacher, you are going to conduct intro talk in a college. So if you have a good attractive personality, then automatically more people will come in the course. So yeah, so remedies for Venus is basically you have to be very good with females. You should not waste anything. क्योंकि कुछ भी चीज वेस्ट करो ना तो it is not good for Venus. It kind of also reduces Venus energy. Okay, so you should not waste anything. Third is you should not cry. Like there are many people who cries a lot uselessly, but you know whom you find attractive, those who are smiling or those who cry. जो लोग ज्यादा रोते हैं वो खुद ही Venus अपना खराब कर देते हैं. So you should not cry, you should avoid crying, you should be smiling. When you smile, you are automatically attractive, so your Venus energy has automatically become good. I think, and so these are very small little things which people don't know, and they do, and which kind of reduces their planet's energy. Okay, then third, let's come to Shani center. और किसी को कोई question है ना, वो also you can keep on posting in the chat box. Yeah, Shani is the karaka of your hard work, your potency to work, your seva. Shani जो ग्रह होता है उसका basically title होता है seva, and it is also the न्याय देवता, the lord of justice. So Shani आपका अगर कुंडली में थोड़ा सा weak है, so it gives you kind of a laziness and you will be slow in everything because Shani is the slowest moving planet, and yeah, you will face a lot of struggle in your material life basically. Okay, या मरकरी पे आते हैं. अभी शनि का कुछ वीनस या जुपिटर निकल चुका है तो उसका कुछ पूछना है तो ये कुछ. सो शनि के लिए व्हाट इज द रेमेडी? बी वेरी काइंड टू योर इंफीरियर्स. लाइक जुपिटर के लिए था कि आपके सुपीरियर से अच्छे से बात करो. किसी का शनि वीक है तो आपके जितने भी नीचे लोग हैं ना, आपके सर्वेंट्स या फिर आप कहीं भी जा रहे हो, जो भी आपके कंपनी में जितने नीचे लोग हैं, सो यू हैव टू बी, you should be very kind to them. और जो शनि की रेमेडीज आपने देखा होगा कि लोग जाते हैं मंदिरों में, बहुत सारा तेल, सरसों का तेल और तिल का तेल चढ़ाते हैं, तो एक्चुअली उसका असर होता है, बट 2 बूंद 3 बूंद या 1 चम्मच चढ़ा दो और बाकी का बचा हुआ आप किसी गरीब को दे दोगे, देन शनि विल बी मोर हैप्पी बिकॉज शनि इज द कारक ऑफ जस्टिस. तो आपके तेल चढ़ाने से शनि के देव पे पूरा 1 लीटर तेल चढ़ा रहे हो, वो पूरा बर्बाद होता है. उसकी जगह से आप 2 बूंद तेल चढ़ा के किसी गरीब को दे दो बाकी बचा हुआ, तो ही डोंट यू थिंक शनि देवता विल बी मोर हैप्पी? तो जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज होती है ना, उसके पीछे बहुत डीप मीनिंग होता है. एकदम ब्लाइंडली यू शुड नॉट फॉलो दैट एंड यू शुड यूज योर इंटेलेक्ट. ये मैं कुछ कर रहा हूँ, इसका कुछ क्या सिग्निफिकेंस है, तो आई विल टेल यू. सो देयर इज अ वेरी डीप साइंस, लाइक एवरी रेमेडी इज सो साइंटिफिक. तो मस्टर्ड तेल या तिल का तेल होता है ना, तो उसका जो टेस्ट होता है ना, दैट इज कसेला, थोड़ा सा एस्ट्रिंजेंट फ्लेवर बोलते हैं उसे. ओके, और जो शनि का फ्लेवर होता है, हर प्लैनेट से एक टेस्ट भी जुड़ा हुआ है, तो जो शनि का फ्लेवर होता है दैट इज ऑल्सो एस्ट्रिंजेंट. तो जब आप मस्टर्ड ऑयल या तिल का तेल शनि पे चढ़ाते हो ना, तो you kind of put an intention. You have to look at that oil and put all your negativity and कड़वापन, और वो शनि देवता पे चढ़ाते हो तो आपका ये इंटेंशन होता है कि मेरी लाइफ में जितना भी कसैलापन है ना, कड़वापन है, you take up all that शनि देवता. So this is the scientific significance of this शनि पे तेल चढ़ाना. ऐसे ही जैसे वीनस होता है तो सारी चमक धमक की चीजें इज एसोसिएटेड विद वीनस. So you should wear more white clothes and yeah, थोड़ा सा मतलब you have to be what you say, थोड़ा सा chill pill type. You have to be happy jolly person, then Venus will also be happy. अभी जन्माष्टमी में सत्संग हुआ था तो गुरुदेव ने बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट बोला था, I remember always, कि भगवान होते हैं ना, भगवान को भी ग्रेटफुल और हैप्पी लोग पसंद होते हैं. ओके, जो ज्यादा चू चू करते हैं वो भगवान को भी पसंद नहीं है. तो those people who kind of start
व्हाट यू से, धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी बातों पे लेके हमेशा ग्रम्बलिंग करते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है. तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया. इट काइंड ऑफ आई एम गोइंग टेलिंग अबाउट द प्लैनेट, सो प्लैनेट्स को भी ये पसंद नहीं है. So the more grateful you are, the more abundant you feel. Ultimately, the basic line is this: the happier you become. And planets का आपकी लाइफ में कुछ खराब हो रहा है, कुछ खराब रिजल्ट भी ला रहे हैं, तो उसका बेसिकली पर्पस ये नहीं है कि ये येलो शर्ट वाला इंसान है, इसको मैं आज परेशान करता हूँ. क्यों भाई, प्लैनेट्स क्यों परेशान करेंगे आपको? नहीं, उसका पर्पस है कि आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाना चाहते थे. वांट टू मेक यू लर्न समथिंग बिग, make you basically they want to make you better human being and want to make you grow on this path. Okay, so let's take some questions. Here there is one question coming in YouTube also. Yeah. Success Sutras करके एक है, उन्होंने पूछा है what about the boys who are very good to women but yet not getting married? तो मोस्टली ऐसा होता नहीं है. those who are very good to women, okay, तो क्या होगा? women will like them, then why they will not get married? They will automatically get married. See, these all are remedies are very scientific. When you are like very giving, very caring to women, then women will like you, then automatically you will get married. Abhishek, isn't it true? So I am speaking logic, isn't it? ये जो भी remedies है ना, if you will see in depth, they are very logical and scientific. एकदम कुछ भी हवा में नहीं है. तो if you are not getting married, that means you are thinking you are good to women, but actually that is, you ask them, am I really good to them? You will get to know. Yeah, next, any more question? Rachna ji is asking on YouTube, भैया is मांगलिक दोषा bad? I am मांगलिक. हाँ, मंगल पे आएंगे अभी. गुरु, शुक्र और शनि का कुछ हो तो पूछो. गणेश नायक जी बोल रहे हैं, he is asking you to answer this in हिंदी. शनि को हम गुड कर्मा से ठीक कर सकते हैं क्या? Yes, that's what I told. कि कोई भी प्लेनेट आपकी कुंडली में कितना भी खराब हो, आप अपने कर्मा से सब ठीक कर सकते हो. This is the power of human birth. So Shani is like all about good karma only. If you are good to people, if you are helping people, like बहुत सारे क्या लोग करते हैं कि बहुत सारे लोगों को भंडारा दे रहे हैं, बाहर बहुत शो ऑफ कर रहे हैं, इतना अच्छा काम करता है, और उनके जो घर के सराउंडिंग के लोग हैं, जो उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो लोग ही उनसे खुश नहीं है. तो शनि को खुश करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जो आपके आसपास के लोग हैं ना, उनके लिए अच्छा काम करो. दुनिया के लिए करो ना करो, लेकिन वो लोग, उन लोगों के लिए आप जितना अच्छा कर सकते हो, जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, करो. शनि का लाइक एक मूल मंत्र है, निस्वार्थ भाव से सेवा करो. कोई कुछ दे ना दे, आपको शनि भगवान आपको कुछ ना कुछ जरूर देंगे. शनि इज लाइक ऑल अबाउट सेवा. सो या, सेल्फलेस सेवा इज द रेमेडी फॉर शनि. यस, नेक्स्ट. हाँ भैया, और एक क्वेश्चन आया है युक्ति पटेल जी का, हाउ सुदर्शन क्रिया हेल्प्स इन बैलेंसिंग ग्रहास? Yeah, that I have already told in medical astrology. एक मेरा वीडियो था इस साल, शायद 2-3 महीने पहले, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी. तो I have told in all detail कि how सुदर्शन क्रिया purifies our air element, and Shani and Rahu are connected with air element, so automatically they become strong. तो वो वाला वीडियो देखना आप, उसमें मिल जाएगा. भैया कुछ जूम में भी क्वेश्चंस आया, वो मैं ले लेता हूँ. मेरे पैसे बार बार चोरी होते हैं, मैं क्या करूँ? मंजुला मोहित. तो उसके लिए मेरे को आपका चार्ट देखना पड़ेगा. तो ड्यूरिंग द एंड ऑफ द मीटिंग आई विल शेयर माय नंबर, यू कैन पिंग मी और सम गुड एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि चोरी से रिलेटेड होता है आपका 8th हाउस या फिर 12th हाउस. सो आपका 8th हाउस और 12th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. धैर्य सोनी जी का क्वेश्चन है, ग्रह का प्रभाव किस सीमा तक जीवन में काम करता है? So this is a very interesting question, क्योंकि कोई इसका मैथमेटिकल आंसर नहीं है, लेकिन जनरली इट इज सेड दैट when you are on this path and you don't have much expectation, especially like when Gurudev in your life and you are totally working for Gurudev, then like Gurudev is like Shiva. तो शिवा कुछ जैसे हमारे इंडिया में सारे चीफ मिनिस्टर है, अब नरेंद्र मोदी जी कुछ ऑर्डर देते हैं तो सारे चीफ मिनिस्टर को मानना पड़ता है, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, सबको मानना पड़ता है. सो इफ गुरुदेव has taken is taking care of you and given you some instruction,
then ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. Otherwise, if you want material things, material success, you want to crack IAS, UPSC or IIT, or you want to earn a lot of money, marriage में भी अंदर थोड़ा बहुत तो पड़ता है. But if you are doing सेवा, then it doesn't matter. Yeah. यस भैया, और एक क्वेश्चन आया है, ये कोई है, गुरु चांडाल योग को क्या उपाय करना चाहिए? Chandal योग is like, it's very rare, बहुत ही कम होता है. So it depends on your chart also, and there are certain उपाय आपके लिए. मतलब एक रुद्राक्ष होते हैं particular, it depends on your chart, what in which houses that yoga is for. So if you are really facing some real issues to Guru Chandal Yoga, I'll just speak by number, you can ping me 8900-266-433. गुरु चांडाल योग इज लिटिल कॉम्प्लेक्स है, उसकी पूरी स्टडी करनी पड़ती है, ऐसी कोई जनरल रेमेडी नहीं है. नेक्स्ट. व्हाट टू डू, ये उदित जी का है यूट्यूब से. व्हाट टू डू सो दैट ऑल प्लैनेट्स हैव गुड इंपैक्ट ऑन अस? तो ऐसी कोई एक दवाई नहीं होती है जो जिससे सारे प्लैनेट हो जाए. लाइक मल्टी विटामिन होते हैं ना, वो सारे विटामिन मिल जाते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ईच प्लैनेट बाय प्लैनेट, and you can find out from an astrologer, from your studies कि which planet is lacking in you, कौन सा planet आपका weak है. जैसे जुपिटर किसी का weak है ना, तो उनका होता है डिसीजन मेकिंग में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है. ठीक है. वीनस वीक है तो उनका थोड़ा सा पर्सनालिटी और अट्रैक्शन पावर थोड़ा सा कम होता है. फिर शनि किसी का वीक है तो उनसे मेहनत नहीं होती, दे आर लिटिल लेजी. देन लेट्स कम टू सूर्य. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. सूर्य जिनका वीक होता है ना, तो दे डोंट हैव लीडरशिप क्वालिटी. लाइक सूर्य ऐसा ग्रह है जो बीच में रहता है और सारे ग्रह उसके अराउंड घूमते हैं. सूर्य वीक होने से यू might not get into government job easily, you won't be having that much of leadership qualities, and Surya is like which shows everyone light and gives everybody light and warmth. और आपकी जो अग्नि होती है ना, आपका डाइजेशन सिस्टम एंड लॉट ऑफ अग्नि इज इनसाइड, सो दैट आर आल्सो रूल्ड बाय सूर्य. आपको सूर्य वीक या इम्बैलेंस है तो आपकी अग्नि भी काइंड ऑफ इम्बैलेंस होती है. तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे जो फ्यू बेस्ट रेमेडीज आर, सबसे पहले तो सूर्य को आप अर्घ देते हैं ना मॉर्निंग में, तो दैट इज वेरी पावरफुल एंड साइंटिफिक. जब आप उस अर्घ से देखते हो ना, सूर्य की किरणें जो आपकी आंखों पर पड़ती है, आपकी बॉडी पर पड़ती है, तो इट हैज अ वेरी पावरफुल इम्पैक्ट सनराइज वाली रेस. ओके, सो सूर्य को अर्घ देना वन थिंग यू कैन डू. सेकंड इज यू कैन डू सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार का एक पर्पस है, लाइक the name has a meaning itself, why it is called Surya Namaskar. It kind of strengthens your sun. Okay, and Surya Namaskar with mantras. मंत्र के साथ करेंगे तो it is even better. Okay, then third is Aditya Hridaya Sutra में एक chant होता है, that is specifically for Surya. So that also you can do. And fourth is Surya is connected with your father. So you should keep your father happy and serve him. So that will also make your son strong. Okay. So let's take few more questions, then we will move. Yes, Bhaiya. Bhaiya, how Padma Sadhana affects on planet? Which planet get influenced? That is also I have explained in detail in medical astrology videos. एकदम how Padma Sadhana के जो आसन होते हैं वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे connected होते हैं. हमारा शनि राहु how they affect it. Was that medical astrology video? Next. Yes. Yeah, एक question आया है, how meditation helps in ill effects of graha, deliberated grahas. Some are not intelligent due to some placement of grahas. Put some light on it. Can someone be intelligent with meditation? Definitely. So again, this is again a big topic, and I have explained in medical astrology video. Meditation से कैसे अलग-अलग ग्रहों पे impact होता है. I have told in detail सातों चक्र पे with PPT. You remember Abhishek that medical astrology session? Yes, I have yes. shared a very big 20 slides की PPT थी. उसमें body की frequency और कौन से ग्रह से कैसे आपकी frequency बढ़ती है, कैसे आपके meditation से impact होता है. Just search medical astrology. You will find my session. Yes. Very easy.
जो भी लोग YouTube में देख रहे हैं, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का सेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा, तो आप ये वाला सेशन भी देख सकते हैं। एंड द पीपल हु आर आस्किंग नंबर, वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। यस, इट इज इन YouTube, सत्वा टॉक्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, यू विल टाइप, यू विल गेट इट। एंड जो लोग भैया का नंबर मांग रहे हैं, आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन। भैया आप एक बार फिर से एक बार बता दीजिए, बिकॉज़ पीपल आर आस्किंग। बट send me a WhatsApp message. Calling is like बहुत ज़्यादा हो जाती है। 8900 266 433. It's Indian number +91 8900 266 433. Send me a WhatsApp message. Reply में delay हो सकता है, but I generally replies to everybody. भैया सुरेश जी का प्रश्न है, हाउ टू डील विथ डेलिब्रेटेड मर्क्यूरी। मरकरी पे अभी नहीं आया। चलो, let's move to moon now. Slowly we will reach Mercury. So moon is also very tricky. Moon is very powerful planet and it is connected to our emotions. तो किसी लोगों को ऐसा लगता है ना कि लोग आपके इमोशंस का यूज करते हैं, वेस्ट करते हैं आपके इमोशन, या आपका पैसा वेस्ट हो जाता है। So somehow your moon is not working well or moon is weak. और उसका ना सबसे बड़ा, I'll tell you one very strong remedy for moon. Do not waste water. क्योंकि मून इज कनेक्टेड विद वाटर। आप लोगों ने सुना होगा जो अपनी टाइडल वेव्स होती है, वो मून के मूवमेंट से हम ऐसे ज्वार भाटा होता है, वो कम ज्यादा होता है। एंड हमार बॉडी इज 70% वाटर। मून के मूवमेंट का बहुत असर होता है। तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, ग्लास में पानी आया, एक सिप लिया, 2 सिप लिया और रख दिया, एंड दैट वाटर इज थ्रोन अवे। सो यू नो दैट इज वेरी पावरफुली कनेक्टेड विद आवर इमोशन। तो अब अगर आप ऐसा जूठा पानी छोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं ना, तो आपके लोग आपके इमोशंस भी ऐसे ही फेंकेंगे, ऐसे ही आपका पैसा भी ऐसा थोड़ा सा वेस्ट जाएगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल रेमेडी। डू नॉट वेस्ट वाटर, ड्रिंकिंग वाटर स्पेशली। और नहाते हुए भी, शेविंग करते हुए नल चलता रहता है, जो ब्रश करते हुए तो कितना ज्यादातर लोग करते हैं, नल चालू है, दे आर डूइंग ब्रश एंड वाटर इज स्पिलिंग। सो बी वेरी केयरफुल विद वाटर कंजर्वेशन। बहुत छोटी बातें हैं, बट आई टेल यू बहुत अंतर पड़ता है। आप एक हफ्ते करेंगे ना ये जो मैं बता रहा हूँ रेमेडीज छोटी, you will see the difference in your life. Especially ये moon वाला, तो I have observed with so many people to waste water, 1 से 2 से पिया, या तो बेस्ट इज जितना पीना है उतना ही लो। कोई आपके लिए ला भी रहा है ना, तो उसको दूसरे ग्लास में लो, बोले तो मेरे को थोड़ा सा ही पीना है। एंड डोंट वेस्ट वाटर। और डोंट वेस्ट एनीथिंग। मैंने शनि का तेल का भी बताया कि लोग देखते हैं कितना सारा खाना, कितना सारा तेल, कितनी सारी चीजें वेस्ट करते हैं, मूर्ति पे चढ़ाते जाते हैं। तो या इट इज श्रद्धा। भगवान ने भगवद गीता में यही बोला, इट इज श्रद्धा दैट मैटर्स मोर। खाना वो आप किसी गरीब को दोगे तो आपको ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी। Isn't it? Abhishek, do you agree? It's very scientific. So you have to use your brain also. एकदम अंधविश्वास से you should not follow it. And I tell you, best remedy is to help people. Keep people around you happy. All your planets will become good. Yeah. So let's take some questions. Bhaiya, Yukti ji is asking, is Venus Mahadasha considered good or bad in someone's Venus Mahadasha is the best Mahadasha. Venus is an extremely benefic planet, and if you are in Venus Mahadasha, and luckily if your Venus is strongly placed also in your chart, you will enjoy all the luxuries in your life, maybe sometimes without effort. And I'll tell you, I am an example. Like my Venus Mahadasha is going on since last 5 years. So I am getting all the, by Guru grace, I have traveled all the countries, especially European countries, and I have been treated so nicely everywhere. So this is all Venus blessings. Venus Mahadasha is extremely good. But yeah, if your Venus is not well placed, or if by your संचित कर्मा, as I have told before also, कि आपके कर्मों से आपने अपने Venus को खराब कर दिया, you are not respectful with females, especially if you have hurt somebody, then it may not give that good results. So yeah, you have to see. But overall, it is the best Mahadasha. Venus Mahadasha. भैया वो means मेरा क्वेश्चन है कि कब आता है, वो कैसे पता चलेगा? We need to show our charts. So yeah, you can ping me. I'll tell you, or I'll tell you now itself. I have your chart. Just you should know these basic things. पर आपकी लाइफ में ना कब खड्डा आने वाला है, कब ऐसे करके स्पीड ब्रेकर आने वाला है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए. That's why sometimes it is like good if you find some good astrologer, at least basic roadmap of your life.
You should find Yes. out. So Abhishek, what do you think? Which is your Mahadasha? अभी तो शायद शनि खत्म हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है. नहीं आप इतना अच्छा काम कर रहे हो. No, you are in Guru Mahadasha, Jupiter Mahadasha. Okay. And right now it is Jupiter and Ketu. अगले साल जुलाई 2022 से इस साल जुलाई 2021 से अगले साल जुलाई 2020 तक जुपिटर इज इन महादशा एंड केतु इज इन अंतर्दशा. जो महादशा इज लाइक planet on the driving seat. आपका जो मेन एनर्जी है ना, that planet will be driving. इसका और Jupiter Mahadasha is about spirituality. You will be spreading Guru's knowledge. So that is what you are doing, right? yes. Jupiter is Guru. So Guru is driving your life. So your life is driven by Guru and Guru's energy. So you're spreading his knowledge. Then Ketu is like, I'll discuss about Ketu. धीरे धीरे आएगा. So you will get to know how is the Ketu's energy. And Venus का आने वाला है क्या ऐसा? Venus का अंतर्दशा you will get after Ketu. Venus comes. So this is also very tricky. Ketu gives you kind of a isolation and little bit of what is the separateness. उसके बाद Venus आते ही things become chill. Like before Venus Mahadasha, I had Ketu Mahadasha, and I was studying in IIT that time. So being in IIT and having Ketu Mahadasha, it was little tricky because Ketu gives you kind of a introvert behavior. So yeah, we will discuss about this. But I tell you, this is, you know how this helps. Suppose Abhishek की Jupiter Mahadasha चल रही है. Like suppose Abhishek स्विट्जरलैंड जा रहा है या आइसलैंड जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज जा रहा है, और वो इंडियन कपड़े पहन के जा रहा है, हाफ टी शर्ट कुर्ता पजामा लेके जा रहा है, तो क्या होगा? He will struggle a lot in Switzerland. There is so much of cold in Switzerland, right? And he is carrying kurta pajama and t-shirt, so he has to carry jacket, he has to carry boots. तो ऐसे ही when you know what kind of energy is prevailing in your chart, आपकी Venus महादशा चल रही है कि शनि महादशा चल रही है, राहु महादशा चल रही है, so you can prepare your life and action and lifestyle accordingly. Like luckily Abhishek is doing a very good job as per his Kundali Mahadasha and Antartasha. So ऐसे ही और लोग भी, if they know at least the basic of astrology, and I have explained in detail how to find out this Mahadasha Antartasha in my previous video. This is like my 10th video in this channel. आप और videos देखोगे ना free time में, so you will find out, you can find out yourself, and it will help you to what you say channelize, plan your lifestyle. कि अभी मेरी वीनस महादशा चल रही है तो इट्स इज लिटिल टाइम टू चिल पिल, और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने की भी जरूरत नहीं है. इट्स लाइक थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम है. शनि महादशा चल रही है तो it is not at all a time to chill pill. You have to work hard, you have to be helpful to people, you have to do seva. Then राहु की महादशा चल रही है तो a lot of confusion and hallucination may come into you, so you have to be very careful with your decision making. Health issues may come up. Then ऐसे करके मून की महादशा चल रही हो तो lot of emotions may pop up in unnecessarily. You may become very soft and gentle. Okay, then Mars की महादशा चल रही हो तो you will become very dynamic. So we have covered till moon. So now let's move to Mars. So Mars is the planet of energy and dynamic. कोई पूछ रहा था ना कि मंगल दोष, तो एक्चुअली मंगल का मतलब क्या होता है? अभिषेक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंगल? मंगल मींस अगर हिंदी में सब जाने तो इट्स शुभ कार्य को मंगल कार्य बोलते हैं. तो एक्चुअली मार्स जो प्लेनेट होता है ना, इट इज अ कारक ऑफ मंगल. हर चीज वो मंगल करता है. तो मंगल दोष कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ वो खराब है. तो इट इज जस्ट द एनर्जी पैटर्न, एज मार्स इज द कारक ऑफ एनर्जी. So you need some amount of energy to do some work. Okay, that's why if you have that Mars energy तो बोला जाता है मंगल है, सब मंगल है, तो जिससे कि काम अच्छे से हो जाएगा. अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, then you don't say सब मंगल है. That means the Mars energy is missing. So Mars people are very good in executing and implementing tasks. They are like very energetic, very enthusiastic about everything. So this is the significance of a strong Mars. Or red blood cells are ruled by Mars, so their health is also very nice most of the time. और किसी का Mars weak है तो ये सब नहीं होगा जो मैंने बोला. They are little like slow, lazy. They are not that dynamic. Okay, and remedies to strengthen Mars is you have low Mangal. What does low Mangal mean? Low Mangal means like your energy is little less. Okay, and remedies to strengthen Mars is you have to be, you can do more workout and you can chant Hanuman Chalisa. So Hanuman जी को मंगल का एक
बहुत बड़ा रेमेडी बताया जाता है। ट्यूसडे को हनुमान जी की पूजा होती है, राइट? तो हनुमान चालीसा के जो मंत्रास है ना, दे आर मेड इन सच अ वे दे डायरेक्टली इम्पैक्ट योर मार्स। तो मार्स की जो मैं एक मेन रेमेडी जो बताता हूँ ना, दैट इज हनुमान चालीसा ओनली। केवल हनुमान चालीसा इज can do everything to you. And one more important remedy Mars has is remove negativity from your speech. Like कोई भी आप काम करने जा रहे हो ना, उसमें हम डाउट डाल देते हैं बहुत सारे कि ये नहीं होगा, इसमें ये आएगा, या किसी के बारे में बुरा बोलते हैं। When you start abusing, when you use abusive language, और किसी के बारे में कुछ भी negative बोल रहे हो, then your Mars energy go for a loss. So don't speak negative about everybody. And Rahu, Mars and Rahu has also connected kind of. So Rahu, so let's come to Rahu. तो Mars के बाद let's move to Rahu. So Rahu के लिए भी you should not better not speak instead of speaking negative about anybody. किसी के बारे में खराब बोलने से अच्छा ना बोलना better. तो आपका जब राहु स्ट्रांग होता है ना, तो you become like what you say, very intelligent, very sharp. Rahu is the ruler of our nervous system. तो जब किसी का राहु खराब होता है तो उसको बड़ा confusion रहता है, like he is confused and bewildered and vata imbalance happens most of the time. But when Rahu is strong, so your Rahu basically denotes your thinking pattern. So your thinking patterns are very positive when your Rahu is strong. Negativity आएगी नहीं दिमाग में, आपके दिमाग में ज़्यादा negativity आ रही है तो कहीं ना कहीं Rahu imbalance हो गया. By Sudarshan Kriya definitely Rahu improves. Or you can use air element, like you can purify your air element more, like हवन कर सकते हैं, अग्नि कार्य जिन्होंने उपनयनम किया है ना, तो अग्नि कार्य कर सकते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती से भी ना एयर एलिमेंट काइंड ऑफ प्यूरिफाई होता है, तो इट काइंड ऑफ हेल्प्स अ लॉट. और बेस्ट रेमेडी फॉर राहु इज अटेंड चंडी होमा. अष्टमी का जो अष्टमी तिथि होती है ना, उसका लॉर्ड राहु होता है, तो अटेंडिंग चंडी होमा इज वेरी गुड फॉर राहु. Okay, and less gossip I have already covered. So speak as minimum as possible, and if you are speaking something negative, better not please. Okay. So Rahu is done. Then come to Buddha. After that we will take up Ketu. So Buddha का क्या question था? Buddha, when Mercury is debilitated, so then what to do? So Mercury is like a prince in the Navgrahas. Okay, and it is connected to green color. So सबसे best remedy होती है Mercury की, that is planting saplings, trees, पेड़ लगाओ. तो पेड़ लगाने से ना, आप पेड़ के साथ साथ कोई आपकी जो स्ट्रॉन्ग विश है ना, वो भी आप पेड़ के साथ डाल दो. आई टेल यू, आपके पेड़ के साथ साथ वो आपकी विश भी होगी. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट इज हेल्पिंग एनवायरमेंट. So you know, these all remedies, as I told, it should be there to help others, help everybody. एकदम आग बंद करके भी remedy you should not follow. You should see what impact that remedy is doing. So for Mercury, you can plant, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, और and you can chant Ganpati Atharvasisham. That is very good for Mercury. On Wednesday, Ganpati Atharvasisham, it is very powerful. I chant daily, I tell you, since last few days especially, I'm chanting Ganpati Atharvasisham daily, and it is very, very powerful. And yeah, green color is very favorable for Mercury, and yeah, that's it for Mercury. Then let's come to Ketu, and let's take some questions. Yeah, भावना जी, Mercury मैंने explain तो कर दिया, और क्या पूछना है आपको Mercury के लिए स्पेसिफिक? पेड़ लगाओ, या Mercury के लिए पेड़ लगाओ, गणपति अथर्वशीर्षम करो, एंड या वन मोर वेरी वेरी पावरफुल रेमेडी. तो जनरली लोग अपने दांत साफ करते हैं, अपनी टंग को साफ नहीं करते. So it is very important to clean your tongue also, क्योंकि जो आपका Mercury होता है ना, that is connected with your communication. All of your communication comes through Mercury. So when your tongue is not clean, na, so somehow that impurity will come in your communication also. So make this a habit. ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, but एक हफ्ते में I tell you, you will feel the difference. Daily morning, and health wise also it is good. Keep a tongue cleaner also. Otherwise nowadays brushes के पीछे भी tongue cleaner होता है. While brushing, clean your tongue also every day, and see within a 1 week you will find out कि बोलते बोलते आपके मुंह से कभी कभार कुछ उल्टा सीधा या कुछ भी, मतलब क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है ना, तो it will start improving. So this is, भावना जी ने अच्छा हुआ याद दिला दिया. This is one of the best remedies for Mercury. उसके बाद धीरे धीरे चार्ट देख के we can find out more remedies. Okay, so yeah, let's take few more questions.
Bhaiya, there is one question. My guru is in Makar Lagna. How to increase Shubh effect of guru? Yeah, so Guru ka to I have started, I have told already, be very humble and respectful to your superiors. आपके जो भी गुरु है ना, उनका आशीर्वाद लेते रहो, आप उनके डेली पैर छूपाओ, गुरु पूजा चैंटिंग करो, वो गुरुदेव से मिलते रहो, उनका ब्लेसिंग ले पाओ. हमारे पास तो साक्षात लाइव गुरु है, तो we don't need much. Our guru is already very strong, but still keep doing advanced courses and keep serving him. That will make your guru stronger. गुरु की हम लोग को बहुत टेंशन नहीं करती है, हम सबका गुरु काफी स्ट्रॉन्ग है. भैया, there is one question. संध्या वंदन से क्या होता है and what is its astrological view? संध्या वंदन से बेसिकली क्या होता है, आपके जितने भी प्रारब्ध कर्मा होते हैं ना, नेगेटिव कर्मा, लाइक दिस इज आल्सो वेरी साइंटिफिक. आप जिस घर में पैदा हुआ है, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. आप अगर पड़ोसी के घर में भी पैदा हो सकते थे ना, और आपकी जो लाइफ है वो टोटली शायद डिफरेंट होती है, आप पड़ोसी के घर में पैदा होते. सो आप उस समय पे उस घर में पैदा हुए. दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस दैट यू हैव gained through your prarabdha karmas. That is what astrology tells you, how strong is your prarabdha karma. So what was the question? Can you please repeat, Abhishek? ये क्वेश्चन था, संध्या वंदन से क्या होता है? So संध्या वंदन से हमारे पूर्व जन्म के कर्म प्यूरिफाई हो जाते हैं. It kind of purifies and nullifies also our prarabdha karmas. पिछले जन्मों में जितने भी हमारे थोड़े से कुछ नॉट गुड जो भी हमारे सिंस थे, that all becomes, जो आपका 5th हाउस होता है ना पूर्व जन्म कर्मास का, that totally becomes purifies. And Sandhya Vandam is like the one of the most powerful remedy if you want to grow spiritually. It is very powerful. I also do, like morning mein I did Sandhya Vandam with Abrika. Like every day I kind of nowadays. It's very powerful. और एक क्वेश्चन है, what impact does wearing yellow sapphire has? So क्या रहता है कि येलो इज कनेक्टेड विद जुपिटर, गुरु, ठीक है. तो जब हम और रिस्पेक्टफुल, जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे भी आगे बढ़ते जाते हैं ना, विद ग्रोथ समटाइम्स कम ईगो, एंड ईगो इज वेरी डेंजरस. आपको लगता नहीं है कि आपके अंदर ईगो आ गया, बट इट काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट्स टू अदर पर्सन एंड इट काइंड ऑफ डिस्ट्रॉयज योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. आपका ग्रोथ उससे कम होने लगता है जैसे आपके अंदर ईगो आ गया. तो ऐसा बोला जाता है, when you are like spiritually evolving a lot, so to keep a check on your Jupiter energy, it's not recommended for everybody, but that's yellow sapphire kind of gives you little bit of control on your Jupiter energy, especially the ego portion. It kind of brings little bit of humility, so it is little tricky. So gemstone का मैं बोलूँगा कि you should consult a good astrologer, after that only you wear, क्योंकि ना these are rajasic remedies. जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाला पीपीटी, उसमें मैंने पूरा रेमेडीज के बारे में बताया, सात्विक रेमेडीज, राजसिक रेमेडीज, तामसिक रेमेडीज. सो जेमस्टोन इज लाइक अ राजसिक रेमेडी. इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ योर जुपिटर, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. तो बेस्ट इज मंत्रास आर द सात्विक रेमेडी. जस्ट डू गुरु पूजा चैंटिंग, दैट इज सफिशिएंट. There is one more question which is coming up in chat. How to increase my decision making and applying knowledge in my life? Yeah, so decision making is all about Jupiter. So decision making अगर आपको improve करनी है तो you become an art of living teacher. I tell you, my decision making has improved so much after becoming art of living teacher. So this is one of the best way to increase your Jupiter, क्योंकि you start getting that Guru Tattva more dominant inside you when you become an art of living teacher. आप किसी भी टीचर्स की देखना, उनकी डिसीजन मेकिंग काफी अच्छी होती है जनरली. एंड सेकेंडली यू स्टार्ट, एज आई टोल्ड, आप वीडियो का स्टार्टिंग क्वेश्चन देखना, जो रेमेडीज बताई है ना मैंने जुपिटर की, बी मोर रिस्पेक्टफुल टू योर सुपीरियर्स एंड चैंट गुरु पूजा. एंड यू कैन वियर अ केसर तिलक ऑन योर फोरहेड डेली. केसर या फिर चंदन का तिलक यहाँ पे लगा सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी डीप सिग्निफिकेंस. आज्ञा चक्र होता है प्लस
आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड भी यहाँ से कनेक्टेड होती है, तो your decision kind of is ruled by this reason. So when you apply chandan or kesana, so it remains cool and it has a cooling and soothing effect, so you can make better decision. Yeah, this you can try. Okay, there is one more question from Kanta Pawar. शुक्र की महादशा और अंतरदशा का क्या इफेक्ट है और इसके क्या उपाय हैं? तो शुक्र की महादशा अंतरदशा, किसी की भी ग्रह की महादशा अंतरदशा का जो इफेक्ट है ना, तो हर इंसान के लिए वेरी होता है. सी एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग व्हिच इज वेरी, व्हाट यू से, वेरी पर्सनलाइज्ड. तो अब किसी का शुक्र बहुत स्ट्रांग है तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा. अभी किसी का शुक्र 6th हाउस या फिर मतलब किसी स्ट्रांग नहीं है इतना, तो उसके लिए इतना इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा. सो आई कैन नॉट गिव अ जनरलाइज्ड आंसर, सो दैट आई हैव टू सी योर चार्ट. बट इन जनरल शुक्र, लाइक जो हमारे 5 मेन ग्रह होते हैं ना, शुक्र, गुरु, चंद्रमा, मरकरी, सो दीज आर द बेनिफिक प्लैनेट. और शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, दीज आर द मैलेफिक प्लैनेट. तो बेनिफिक प्लैनेट की महादशा अंतरदशा जनरली अच्छे रिजल्ट देती है, अनलेस एंड अनटिल आपके चार्ट में वो स्ट्रांगली वीक ना हो. Yes. Bhaiya, there is one question from Kavya ji. When Mangal, Shani and Moon are together in your lagna, then what to do? मंगल, शनि एंड मून आर टुगेदर, सो इट डिपेंड्स आपकी लग्न में राशि कौन सी है. लेकिन शनि और मून थोड़ा सा साथ सेट बैठते नहीं है, क्योंकि मून इज अ वेरी जेंटल प्लैनेट एंड शनि एंड मंगल बोथ आर लिटिल हार्श प्लैनेट. तो ठीक है, थोड़ा सा आपका माइंड और पर्सनैलिटी ऊपर नीचे जाएगी, बट या देयर कैन बी लाइक यू व्हाटएवर रेमेडीज आई हैव फॉलोड फॉर ऑल 3 ऑफ देम, मंगल, शनि और मून. ये वीडियो इज लाइक सो पावरफुल. अभिषेक, आई हैव पर्पसफुली गिवन दिस वीडियो. इस वीडियो में जो रेमेडीज बताई है ना, इफ यू कैन फॉलो दिस ओनली, लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज. बहुत छोटी छोटी बट वेरी पावरफुल रेमेडीज आई हैव टोल्ड. सो या, यू फॉलो द रेमेडीज टोल्ड इन दिस वीडियो एंड इट विल हेल्प. एक सवाल था कि कभी कभी जब हमारा मनी जो होता है वो वेस्ट होने लगता है, जैसे कुछ ऐसे खर्चा है जिसका कोई यूज नहीं था, जैसे कुछ गाड़ी अचानक कुछ खराब हो गया या कुछ ऐसे जगह पैसा चला गया जहाँ पे कुछ ज्यादा यूज नहीं हुआ उसका, तो उस वक्त क्या दोष होता है और उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? So that is mostly coming out of your प्रारब्ध कर्मा. So हर इंसान की कुंडली में ना, जैसे 12 हाउस मैंने पिछली सेशंस में बताया था कि हर इंसान की कुंडली में 12 भाव होते हैं. उसमें जो 12वां भाव होता है ना, इट सिग्निफाइज योर लॉसेस. ओके, तो 12वें भाव में कौन सा प्लेनेट, कौन सी राशि बैठी है, उसके बेसिस पे, और अभी आपकी कौन सी महादशा अंतरदशा चल रही है, तो उसके बेसिस पे फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी यू कैन इजीली प्रेडिक्ट कि इस फेज में आपके लॉसेस होने के बहुत हाई चांसेस है. तो या यू कैन स्टॉप, यू कैन अवॉइड टेकिंग दैट रिस्क इन दैट पीरियड. सो losses are also kind of written in your chart, but you have to be little careful. That is the kind of only solution. And second is, like as I told, कि चीजों की wastage ना करें, क्योंकि that is also creating a karma when you are wasting things. So if you are wasting things, then your things will also be wasted, especially water and food and Venus की जैसे एक और remedy I have already told. I think do not waste things. When you waste things, then your things will also waste at some point of time. So this is some small little things you can do. Plus you have to be careful if there is a, but I tell you, I have seen so many charts, those who are on this path, उनके इतने बड़े बड़े losses लिखे थे ना, वो इतने छोटे छोटे में निकल जाते हैं. This is really incredible. So when you are doing sadhana seva satsang, so even if you are facing loss ना, be grateful. कुछ तो बड़ी चीज छोटे में निकल गई, because it is actually the truth. भैया एक और प्रश्न आया है, वो बोलते हैं कि आई स्टे विथ माई इन लॉज, आई लव देम, बट व्हेन इट कम्स टू रेस्पेक्टिंग देम आई लैक अ बिट इन देम, व्हाई? सो दिस इज योर पुरुषार्थ. नो, हर चीज आप प्लेनेट थोड़ी कर सकते हो. अभी रिस्पेक्ट देनी है तो वो तो आपको खुद ही देनी पड़ेगी ना. सो दिस इज वेरी ट्रिकी. दूसरों का बिहेवियर आपके लिए कैसा है, that is not in your hand. In fact, this is a happiness program point. Do you think your own mind is in your hand? No, right?
So how can you think like सामने वालों का मन और behavior आपके हिसाब से हो? It is not possible. It is futile. So your dharma, your karma is to give respect to them irrespective of what they are giving. So this is what is called purushartha. किसी का प्रारब्ध कर्मा में थोड़ा सा टफ आया, ये कर्मा पेरेंट्स और इन लॉज उनके थोड़े से टफ है, तो यू प्रे टू गुरुदेव बट यू हैव टू डू योर पुरुषार्थ, आप भाग नहीं सकते उससे. अदरवाइज जो 4 प्लस होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, so it is part of your dharma and karma also. So if you will run away from it, then also maybe in the next birth you have to pay back. तो इसी जन्म में ये सोच के कर लो कि हाँ पिछले जन्म में मैं भागा हूँगा तो इस जन्म में कुछ आ रहा है, तो let me do it, let me go through it, and yeah, get relief this birth itself. भैया 2 और क्वेश्चन आए हैं, रचना दी का और विभारी जी का. काल सर्प दोष के उपाय क्या है, काल सर्प दोष क्या है और पितृ दोष क्या होता है? So these both are very very detailed topic. अभी जो हमारे पास 5-10 मिनट बचे हैं उसमें it's better not to cover. But if you are doing साधना सेवा सत्संग, so दोनों के एक बहुत ही पावरफुल और सिंपल उपाय बता देता हूँ मैं इन शॉर्ट में. गौ सेवा एंड गौ पूजा, हमारे स्पेशली जो गुजरात आश्रम है ना ऋषि विद्याधर जी के साथ, every week you find some गौ पूजा is happening. To take a संकल्प in गौ पूजा एंड गौ सेवा का भी ऑप्शन रहता है कि आपको 1 दिन की गाय सेवा करनी है, 1 महीने की गाय सेवा करनी है, तो डू गाय सेवा. अभी स्पेशली ये पूर्णिमा के बाद पितृपक्ष चालू हो रहे हैं, तो इन दैट डू गौ पूजा एंड गौ सेवा एंड तिल होमा होगा अमावस्या पे, अगली अमावस्या पे डू तिल होमा. दिस इज सफिशिएंट, लाइक दिस विल हेल्प यू अ लॉट. ये एक क्वेश्चन आया है, my husband Ashok Rana and my son Piyush Rana are always angry with each other. What should I do? So how can I tell what should you do? So yeah, you have to, maybe you can ping me, I can see their chart and based on that I can tell something. But see, in like family matters, आप जिनके साथ 5 साल 10 साल से रह रहे हैं, तो आप किसी तीसरे इंसान से पूछेंगे ना कि मैं क्या करूं, तो वो क्या ही बता पाएगा, नहीं बता पाएगा वो. यू नो देयर पैटर्न्स बेटर, सो यू हैव टू एक्सेप्ट सम थिंग्स, या यू हैव टू एक्चुअली एक्सेप्ट द थिंग्स. लाइक गुरुदेव बोलते हैं ना एडवांस कोर्सेज में, या अभी आपकी सासू माँ 70 साल से कुछ कर रही हैं, तो अभी 70 साल की उम्र में वो चेंज थोड़ी होंगे. यू हैव टू एक्सेप्ट एंड मूव फॉरवर्ड विद दैट. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन बी चेंज, जिस चीजें चेंज हो सकती है उनको चेंज करो, और कुछ चीजें जो चेंज नहीं हो सकती, you have to accept that. This is the solution. You do an advanced course. Advanced course में गुरुदेव ने इनका solution दिया है. Yeah. गौरव गोस्वामी जी का क्वेश्चन है हरिद्वार से. He is asking, I have to build own house. Does Navgara can help in this? What needs to be done? So there is a separate branch of science, Vastu. So Navgrahas will also help, लेकिन you can find out some Vastu consultant and उनसे अच्छा सा proper map बनवाओ, क्योंकि Vastu and astrology are very highly linked. So it's like a more subtler form of astrology. उसमें एक direction में you can find out the energy. Based on that you can place your kitchen, bathroom and all the things. So you take use of Vastu. It is basically astrology in more defined form. So yeah, actually Navgraha can help, but through Vastu. भैया कई लोग अनम्यूट करके भी पूछना चाहते हैं, तो मैं 1-2 को ऑप्शन दे सकता हूँ ना भैया? Yes, पहले आई थिंक ये चैट बॉक्स में कवर कर लो, क्योंकि चैट बॉक्स में है एक निकिता जी का सवाल, हाउ डू वी जज इफ वी हैव वी एक्सॉल्टेड बट द अष्टावर्गा स्कोर इज 25, which is less? Please comment. I am an architect. I work design according to Vastu. So इसका तो see, this is a very specific question, तो इसके लिए तो I have to see your chart and then I have to tell. But I tell you, I have told earlier also in this video कि अगर आपका कोई planet exalted है, तो you cannot assume कि वो आपको अच्छा ही फल देगा. आप उस planet के साथ कितना भी बुरा करते हो. Suppose किसी का Venus exalted है, but he is very rude with females, keep on hurting his mother and sister.
तो वीनस एक्सॉल्टेड वाला फल नहीं देगा, he will lose that exaltation power of Venus. So it's more about your karmas rather than the, like, it gives certain kind of things, but if you won't act properly, like हमारे इलेक्शंस होते हैं तो किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी को पावर मिल जाती है, लेकिन अब वो अच्छे से काम नहीं करता तो उसकी पावर छीन ली जाती है, राइट? सेम इज विद आवर प्लेनेट, इवन इफ यू हैव सम exalted planet, if you don't use them properly, that energy will be gone. And if you have some bad planet and if you are working very well in that field, you can make it exalted. गुरुदेव बोलते हैं ना छठ संपत्ति, तो if you will see all the छठ संपत्तिस are connected to the नवग्रह. एडवांस कोर्स में आपने सुना होगा. तो संपत्ति गुरुदेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते आप कि नहीं भगवान ने मेरे को तो कुछ नहीं दिया है. नहीं, पुरुषार्थ करो, गेन करो. दिस इज द वेल्थ व्हिच यू हैव टू गेन बाय योर एफर्ट्स. या सो नाउ वी कैन अनम्यूट. लोगों को भी कुछ शेयर करना है, कुछ एक्सप्रेस करना है, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. हाँ भैया, एक तो यूट्यूब में और क्वेश्चन आ गया है, तब तक वो भी ले लेते हैं. हाँ, ये विष्णु सहस्त्रनाम का क्या महत्व है? विष्णु सहस्त्रनाम से तो वैसे सारे ही प्लेनेट स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन स्पेशली इट इज फॉर जुपिटर. इट इज स्ट्रेंथन योर जुपिटर. इट इज वेरी पावरफुल. डू इट. यस. ओके, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. साहिल जी, यस, ये स्माइलिंग फेस हमें हर महीने नहीं दिखना चाहिए. या तो ये आप अभिषेक से रिक्वेस्ट करिए. नहीं, आप आ जाना. अभिषेक तो कुछ नहीं बोलता, आप आते नहीं हो. आ जाना बस. एक मिनट, अभी डेट दे देता हूँ. हाँ ठीक. नेक्स्ट मंथ नवरात्रि है ना नेक्स्ट मंथ, तो 22 से 24 अक्टूबर के बीच, थर्ड वीकेंड नेक्स्ट मंथ. यस, यू कैन सी दिस स्माइलिंग फेस. एंड स्माइलिंग फेस से एक बहुत अच्छी रेमेडी याद है कि आप जब जहाँ सोते हो ना, बेडरूम जो आपका है, उसके सामने you can keep some laughing Buddha or some Gurudev की बहुत अच्छी सी फोटो, स्माइलिंग फोटो. Like I have kept this kind of photo in my bedroom. So it, you know, it is really powerful कि जब आप सो के एकदम से उठते हैं ना, वो कोई स्माइलिंग फेस, laughing Buddha, गुरुदेव की फोटो देखते हैं, इससे आपका दिन बहुत अच्छा जाता है. It has a very important positive impact on your life. So Abhishek, these are very small little things, but I tell you, you do it, you will feel such a drastic change in your life. आपके पूरे emotions, जितने भी कुछ ग्रह दोष है ना, सब मिट जाते हैं ये सब लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस से. So yeah, मंजुला जी, good, thank you. नवरात्रि में क्या करें हम? एडवांस कोर्स करिए ना. मैं भी आश्रम जा रहा हूँ एडवांस कोर्स करने. हमें तो अभी नहीं लेंगे ना. लेंगे ना, अभी खुला हुआ है रजिस्ट्रेशन. आई थिंक मैंने भी अभी कल लेकिन वो सुई लगाई नहीं है ना. अरे आरटीपीसीआर करा लेना, कोई नहीं. लेकिन घर बैठे क्या करे वो बोलो ना. ऑनलाइन कर लीजिए आप घर पे बैठे. हाँ, वो तो करेंगे ही. गुरुदेव ने सबके लिए घर पे बैठे बैठे ही खोल दिया है सारा ब्लेसिंग. एडवांस कोर्स ऑनलाइन करिए, फिर सारी पूजास भी ऑनलाइन है बस. हाँ. ये आई गेस वो ये भी पूछना चाह रही है कि नेक्स्ट मंथ आप कौन से टॉपिक के साथ यू विल बी कमिंग अप. एनी हिंट्स और एनी लाइक बिफोर टॉपिक कौन सा चाहिए? तो वो ना आप अभिषेक को मैसेज करते रहिए कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो उसमें से हम लोग. हाँ, कुछ लोग चैट बॉक्स में अभी भी लिख सकते हैं. वी हैव 1 मिनट. अगर आपको कौन सा टॉपिक नेक्स्ट टाइम चाहिए अपार्ट फ्रॉम द 10 टॉपिक्स व्हिच वी हैव कवर्ड, आप लोग ये चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, यूट्यूब वाले कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इसी सेशन के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हमें आइडिया मिल जाए कि नेक्स्ट टाइम हमें कौन सा लेना है. यस. एंड एनीवेज, जो इस बार का टॉपिक था ना, उसको मैंने बहुत ही कट शॉर्ट किया. इट इज अ वेरी पावरफुल टॉपिक. तो कुछ नहीं मिला तो इस पे भी हम लोग काफी गहरी और लंबी चर्चा कर सकते हैं. तो डोंट वरी, टॉपिक की कोई कमी नहीं है हमारे पास. जो फाइनेंस वाला था, I have got feedback कि उससे भी लोगों को काफी फायदा हुआ. That simple awareness of abundance ना, कि मेरे पास ऑलरेडी है सब चीजें. It is very powerful.
क्वेश्चंस आर कमिंग अप, लेकिन थोड़ा सा समय सीमा है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया को आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा उनके नंबर पे, इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम हिज साइड, तो आप उनको व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा। एंड जो लोग भी यूट्यूब में देख रहे हैं ये सेशन को, मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि भैया ने जो सारी आज रेमेडीज बताई है, दे आर सो पावरफुल। एंड ये एक सात्विक रेमेडी है जितने भी भैया ने बताई है, एंड ये आपको बेनिफिट तो कर ही रही है, लेकिन कई और भी लोग हैं जो अपने नवग्रह को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो हमारी भी एक सेवा है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, देखें कि हम कौन है जिसको आज जरूरत है, कौन है जो ये इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन तक ये टॉक पहुंचाइए, शेयर कीजिए इस टॉक को। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही सेशंस मिलते रहे। एंड भैया मीन सत्वा टॉक्स आगे साहिल राठौर करके आप टाइप करोगे तो लाइन से सारे के सारे सेशंस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जिसमें हमने बहुत डीप में डिस्कशन किया है, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। एंड बहुत जल्दी मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, सो दैट एक डायरेक्टली एक जो प्लेलिस्ट के फॉर्म में भी आ जाए वो सारी चीजें। Okay, so एक केतु रह गया था, तो I'll cover केतु also, and केतु is connected with one very important thing जो लोग पूछते हैं, बुरी नजर वगैरह से कैसे बचे, जादू टोना। Okay, so केतु tells about your past life karmas के बारे में काफी ज्यादा बताता है, past life attachment के बारे में। So the simplest remedy for केतु is like let go of things, बहुत ज्यादा hold on करके नहीं रखो, ठीक है, just let go, be relaxed। और मेडिटेशन इज द बेस्ट रेमेडी फॉर केतु। पूछ रहे थे ना केतु का क्या है, तो मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। लेट गो इज द की, एंड कीप डूइंग एडवांस कोर्सेज, स्पेशली लाइक अभिषेक योर केतु इज गोइंग इन अंतर्दशा ना, so I'll suggest you also come to ashram and do advanced course with me during Navratri। So yeah, yes, so my phone number I am telling again, 8900266433। So yeah, so बुरी नजर के बारे में भी एक दो ने क्वेश्चन पूछा मेरे को। So see, it's like our immunity, जैसे पॉल्यूशन होता है ना, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन है और आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको बीमारियां लग जाती है, राइट। तो बुरी नजर का भी सेम सीन रहता है कि आपकी स्पिरिचुअल इमोशनल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, तो फिर लोगों की बुरी नजर आप पे असर करेगी। व्हेन यू आर लाइक डूइंग सच अ ग्रेट वर्क, व्हेन योर सत्वा इज वेरी हाई, तो फिर किसी की बुरी नजर का कुछ भी असर नहीं होगा। तो उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है बुरी नजर का, दैट इज साधना, सेवा एंड सत्संग। उसके अलावा देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हेल्प्स यू टू गेट रिड ऑफ दैट बुरी नजर। फर्स्ट इज यू शुड बी अ रुद्राक्ष। रुद्राक्ष इज वेरी पावरफुल, ठीक है। सबका पर्सनलाइज भी कुछ रुद्राक्ष होता है, तो यू कैन मे बी मैसेज में, आई कैन टेल। रुद्राक्ष है। देन फिटकरी, पोटेश एलम यू कैन कीप इन योर होम, इन योर कार, and that kind of takes negative energy. Third is मोर पंख, जो एकदम नेचुरल मोर पंख आपको कहीं पड़ा मिल जाए ना, तो कीप दैट विथ यू। दैट काइंड ऑफ टेक्स केयर ऑफ योर बुरी नजर, नेगेटिव एनर्जी एट टाइम्स। क्योंकि मानो या ना मानो थोड़ा सा अंतर तो पड़ता है। स्पेशली आई टेल यू वन वेरी पावरफुल रेमेडी। आप कभी भी किसी के साथ कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं ना, आप देखना सामने वाले की इंसान में वो चीज लैक तो नहीं है। किसी की लाइफ में कोई चीज लैक है तो उसके सामने वो डिस्कस मत करना। जैसे अभिषेक इज मैरिड रिसेंटली, तो उसका कोई फ्रेंड है जिसकी शादी नहीं हो रही है, एंड अभिषेक विल टेल कि अरे मेरी तो अभी शादी हुई, इट्स गोइंग ऑन वेरी वेल। तो इट आल्सो काइंड ऑफ, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन इट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ वेरी पावरफुल इम्पैक्ट। ओके, सो जैसे किसी का फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है और आप उसके सामने बोल रहे हो कि मेरे को तो इतना पैसा मिल रहा है, इतना फायदा हो रहा है। So these are very small little things, but it creates a lot of impact when you are aware of these during your communication. ना communication is very important. लोग मतलब शब्दों को ऐसे ही ले लेते हैं कि कुछ भी किसी को बोल दिया, नहीं, it doesn't work. Like टी से निकला हुआ बाण और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते, तो be careful with your words. आप किसको क्या बोल रहे हो, it kind of वो एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली आती है। और किसी के लिए आप स्पेशली नेगेटिव बोल रहे हो ना, तो आपने कुछ पॉजिटिव किया है
और किसी के लिए आपने कुछ नेगेटिव बोल दिया तो आपका वो नेगेटिव भी इकट्ठा हो गया और वो आपके पॉजिटिव को काटता जाता है एंड इट काइंड ऑफ रिटर्न्स टू यू. सो यस, बी मोर अवेयर. एंड मेडिटेशन, किसी ने पूछा था ना मेडिटेशन से कैसे ग्रह इंप्रूव होते हैं. मेडिटेशन गिव्स यू इमेंस अवेयरनेस. द साधना, सेवा एंड सत्संग all are here to help you in that thing. Okay, so yeah, my number is of 10 digit only. 8900266433. हाँ, 10 digit हो तो गए. So yeah, it's 10 digit. Okay, so we have covered everything. बाकी इतने सारे क्वेश्चंस हैं. So I request everyone, these are personalized questions जो आप पूछ रहे हैं. तो आप भैया को व्हाट्सएप कीजिए उनके नंबर पे. वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कई बार भैया ने भी बता दिया है, तो आप थोड़ा सा पीछे जाके वापस सुन सकते हैं. बिकॉज इट्स यूट्यूब, यू कैन गो बैक ऑल्सो. लाइव में भी ऑप्शन आता है, थोड़ा सा बैक जा सकते हैं. सो वहां से आप सुन के वापस आगे आके ये सेशन वापस कंटिन्यू देख सकते हैं. ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल. एंड भैया इतना अच्छा लगा, जब भी आप आते हो यू ऑलवेज एनलाइट अस विद नॉलेज. एंड इतना एक रिलीफ फील होता है. ऑल द पीपल हु वॉच दिस सेशन, उनको एक सेवा, साधना, सत्संग में और कन्विक्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ योर टॉक. एंड थैंक यू सो मच एवरी टाइम कमिंग एंड मेकिंग अस मोर स्ट्रॉन्ग. And भैया जाते जाते any last word you want to say to all of Yeah, us? so last word I'll say कि this is not mine capabilities, it's all his grace. I am just his instrument. So it is, आप भी उनके इंस्ट्रूमेंट बनिए and see what magic comes out of you. It's everything is his grace. So I just surrender everything to my master. जाते जाते, and you also keep walking on this path and be happy. जय गुरुदेव. Thank you so much, Bhaiya, for coming and sharing. Jai Gurudev. जय गुरुदेव.